જયોદૂત ટેકનોલોજીના માધ્યમથી પૂજ્યશ્રીની દિવ્ય વિચાર ગંગાનો આપણે લાભ લઈ રહ્યા છે. આજના પાવન દિને શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનો નવો અંક પીડીએફ સ્વરૂપે આવી ગયો છે, તો પૂજ્યશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે તેના દર્શન કરાવે. ખૂબ ખૂબ આભાર. કોરોના મહામારીને કારણે હાલ શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ પીડીએફ સ્વરૂપે પ્રકાશિત થઈ રહ્યો છે. સ્થિતિ નોર્મલ થયા બાદ ફરીથી એકવાર પ્રિન્ટ સ્વરૂપે આપ આ શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ મેળવી શકશો, તેની સૌ નાથ ભક્તોએ નોંધ લેવી. વિચાર ગંગાના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં આ પીડીએફ તમને મળી રહેશે. અમર દિવસના પાવન દિને નિત્ય પ્રાર્થનાની પુસ્તિકા પૂજ્યશ્રીએ અનાવરણ કર્યું હતું. આ પુસ્તિકા આપણા કાર્યક્રમો પૂર્વવ્રત ચાલ્યા બાદ તમે આ પુસ્તિકા નવનાથ ધામમાંથી મેળવી શકશો. હાલ કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા છે, માટે આશ્રમમાં આવવું નહીં. સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ અને અહીંથી જ્યારે સૂચના મળે ત્યારબાદ જ નવનાથ ધામમાં આવવાનું રહેશે, તેની સૌ નાથ ભક્તો નોંધ લે. આ કપરા કાળમાં પણ નવનાથ ધામના ભંડારા અવિરત ચાલુ જ છે, નિત્ય નિયમ મુજબ ચાલુ જ છે. તે માટે સિંધુ અનાજનું યોગદાન તમે આપી શકો છો. લોકડાઉનના સમયે ઘણા નાથ ભક્તોએ ઓનલાઈન દાન પણ આપ્યું હતું. મા વિમલા જનસેવા ટ્રસ્ટના અકાઉન્ટ નંબર 380910100119 પર તમે ઓનલાઈન દાન આપી શકો છો. આમ ગુરુચરણમાં ભેટ કરી તમે પોતાનો સેવા ધર્મ ચાલુ રાખી શકો છો. હાલ કોરોના મહામારી ચાલી રહી છે, માટે સૌ નાથ ભક્તો ઘરે રહે, પૂરતા પ્રિકોશન રાખે અને પોતાની તબિયત સાચવે અને ભક્તિભાવ કરતા રહે. દવા અને દુઆ આપણે સાથે રાખીશું, તો આ મહામારીમાં આપણે સુરક્ષિત રહીશું. આજનો ભંડારો ગુરુલીન ડાયાભાઈ હીરાભાઈ પટેલ મગદલાના સ્મરણાર્થે તેમના પરિવારજન તરફથી છે, તો સદગુરુદેવ તેમને સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ અર્પે એવી અભ્યર્થના. ગંગાધર ગૌશાળા માટે શ્રી રમેશભાઈ ચૌધરી કાકડવા તરફથી 2000 નંગ કુડીનું યોગદાન આવ્યું છે, તો સદગુરુદેવ તેમને પણ સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ અર્પે એવી અભ્યર્થના. તો હવે આજના પાવન દિને સદગુરુદેવને નમ્ર વિનંતી છે પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ધ્યાનમૂલં ગુરુમૂર્તિ પૂજામૂલં ગુરુપદં મંત્રમૂલં ગુરુવાક્ય મોક્ષમૂલં ગુરુકૃપા. યા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ શ્રી સાનેનાથ ગુરુ મચ્છેન્દ્રનાથ કી જય. આનંદી લાલ કી જય. छोटे दादा की जय. यहीं हम सबके हृदय कमल के ऊपर साक्षात नवनाथ स्वरूप में उपस्थित ऐसे सदगुरु के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन. और जो भी नाथ भक्त हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण और दर्शन फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को, धर्मप्रेमी भाई बहनों को मेरा जयदूत जय जय मच्छेंद्र समर्थ और आदेश. नाथ पंथ में आए के बनाया मुझे सनाथ, कर कृपा मुझ पर दया निधे, देखूं नाथ ही नाथ. यह विचारधारा
सानेनाथ स्तोत्र में अंकित की गई है। और सानेनाथ स्तोत्र में यह स्पष्ट लिखा गया है कि हम सब भाग्यशाली है कि हमें नाथ संप्रदाय प्राप्त हुआ। हम सबके ऊपर हमारे गुरुदेव की समर्थ कृपा तो है, लेकिन साथ साथ यह कृपा का धोध जहाँ से अविरत हमारे सबके ऊपर बह रहा है, वो कृपा का उगम, वो धोध का उगम हमारे इष्ट देवता नवनाथ के चरणों से है। और इसीलिए पिछले 57-58 सालों से हम हमारे इष्ट देवता के सानिध्य में अपना जीवन निर्भय होते हुए, आनंदमय होते हुए, मुक्त होते हुए, सभी प्रकार से दुखों से मुक्त होते हुए हम जीते हैं। यानी जो दया के सागर है, जो करुणा सागर है, जिनमें अनंत कृपा बसी हुई है, वो कृपा देने वाले हमारे इष्ट देवता नवनाथ स्वयं है। और वही नवनाथ की कृपा से हमें हमारे सद्गुरु मनुष्य रूप में प्राप्त हुए और उनके द्वारा, उनकी वाणी के माध्यम से, उनका ज्ञान प्राप्त करते हुए हमने भी साक्षात नवनाथ रूप इष्ट देवता नारायण स्वरूप भगवान नवनाथ की हम भक्ति कर पाए। तो यह विचारधारा सानेनाथ स्तोत्र का एक मूल आत्मस्वरूप है। और इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि जो जीव माया, चिंता, शौक, दुख, भय और अशांत होकर नाथों के शरण में चला जाता है और वहाँ जाकर अपना मन स्थिर करता है, ऐसा भक्त निर्भय बनता है और सनाथ हो जाता है। तो आज के समय में यह विचार गंगा हम सबके जीवन के लिए एक आधार और एक संजीवनी है। और उसका एक ही कारण है कि हमारे इष्ट देवता स्वयं नारायण हैं। वही नारायण जो जगत का पोषण करते हैं, वही नारायण जो हमें जीने के लिए प्राणवायु देते हैं, वही नारायण जो हमें अन्न, प्रकाश और पानी पहुंचाते हैं। और यही नारायण जो सोते समय भी और जगते समय भी 14 दिशाओं से हमारा रक्षण करते हैं। इसलिए आज की विचारधारा हमारे जीवन के लिए एक संजीवनी समान है। गुरु गीता ने तो स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार कपूर हो या फूल हो, उसमें स्वाभाविक सुगंध रहती है कि यथा गंध क्रियादिषु, कि उसमें स्वाभाविक सुगंध रहती है जब तक पदार्थ का अस्तित्व रहे तब तक। आपने कपूर को देखा होगा कि जब तक कपूर आपके सामने जलता है उसका सुगंध का अस्तित्व रहता है। जब तक ताज़ा फूल आपके सामने रहता है और जब तक वो कर्मा नहीं जाता तब तक उसमें से सुगंध हमें मिलती है। लेकिन वो जब तक है तब तक ही वो स्वभाव उसमें रहता है। ठीक उसी तरह आप देखिए कि ठंडा पानी हो या गर्म पानी, पानी ठंडा है तो उसमें से हमें शीतोष्णता मिलती है और पानी गर्म है तो उसमें से हमें उष्णता मिलती है। लेकिन वो कब तक? जब तक पानी का अस्तित्व है, पानी जहाँ का वहाँ है तब तक। लेकिन पानी जब सूख जाए तो न हमें वो गर्म लगता है न ठंडा लगता है। यानी पृथ्वी के सभी पदार्थ जब तक उसका अस्तित्व है तब तक हमें सुगंध देते हैं।
तब तक हमें अनुभव देते हैं, लेकिन यथा ब्रह्म शाश्वत है, नवनाथ साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। और जो शाश्वत ब्रह्म होता है वो हमेशा हमेशा के लिए अपना अनुभव हमें देता है। यानी ऐसे नहीं है कि नवनाथ जब पृथ्वी पर हुए तभी तक उन्होंने अपना अनुभव इस दुनिया को दिया। वो शाश्वत ब्रह्म है, वो अनादि ब्रह्म है, वो निर्गुण ब्रह्म है। इसलिए नाम से सगुण और बिना नाम से निर्गुण भी आज भी वो हमें अपनी कृपा का अनुभव देते हैं। तो नवनाथ शाश्वत ब्रह्म होने के कारण आज भी वो श्रोतनुगामी रूप में है और ऐसी परिस्थितियों में भी उनकी छत्र छाया हमारे जीवन को आधार दे रही है। और इसीलिए जो शाश्वत होता है उसके समीप हमें जाना चाहिए। आज हम 57 सालों से हर गुरुवार को जो भक्ति कर रहे हैं वो किसके समीप हम जा रहे हैं? हम गुरु मंत्र का रटन कर रहे हैं, वो गुरु मंत्र का रटन हमें किसके समीप पहुंचा रहा है? हम हर रोज नवनाथ चरित्र का पाठ करते हैं, हमारी पूजा करते हैं, वो हमें हर रोज किसके समीप पहुंचा रहा है? तो आप ध्यान रखिए कि भले आप संसार में जीते हो, सांसारिक चिंताओं से हम सब व्यग्र होते हैं। हमारी दैनिक क्रियाओं में जो हमें ज्ञान मिला है उसका उपयोग करते हुए हम हमारी पूजा पद्धति करते हैं, लेकिन योगानुयोग हमारी गति हमारी इष्ट देवता के समीप ही हो रही है। और इसीलिए कहा गया है कि हमें हमारी गति नित्य नियम से हमारे इष्ट देवता के चरणों की ओर हमें रखनी चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा कोई कुछ भयावह है, सबसे ज़्यादा उद्वेग का कोई कारण है, या हमारे जीवन के दुख का कोई कारण है, तो मनुष्य जीवन की सहज चिंता यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुख का कारण है। और इसीलिए कहा भी गया है कि आप सब करें मगर जीवन में चिंता न करें। चिंता एक स्वाभाविक लक्षण है, जैसे भय स्वाभाविक लगता है वैसे चिंता स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा कौन सा विषय है जो हमें चिंता नहीं देता? आप देखिए, हमें हमारी चिंता है, हमारे परिवार की हमें चिंता है, हमारे समाज की हमें चिंता है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी उसकी हमें चिंता है, हमें हमारी बीमारी की चिंता है, हमारे मान और सम्मान की हमें चिंता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो चिंता से मुक्त हो। लेकिन चिंता के साथ साथ हमारे जीवन में जब व्यग्रता भी बढ़ जाती है, उग्रता भी बढ़ जाती है, तो हम संसार में रहते हुए भी परमात्मा की ओर हमारा ध्यान नहीं दे पाते। आज आप देखिए कि हम सबकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी खुद की चिंता की कि मेरा क्या होगा? तो जब हम सबकी चिंता करने में जब पड़ जाते हैं तब हम हमें भूल जाते हैं, और जब हम हमें भूल जाते हैं तब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। आज हम कोई भी पूजा करें, पाठ करें, मंत्र जाप करें, लेकिन कुछ भी करें उसमें मन से एक ही बोलते हैं कि भगवान हमारे परिवार को सुखी रखना, हमारे समुदाय को सुखी रखना, धन संपत्ति बनी रहे ऐसी कृपा करना। ये सब हमारी चिंता बोलती है। परमेश्वर ने तो कहा है कि मैं शाश्वत ब्रह्म हूं, आप मुझे कुछ कहो या न कहो, लेकिन जब आप मेरी पूजा करते हैं, आपका ध्यान मेरी ओर जब चला आता है, तब मैं अपने आप आपकी सब चिंता में हर लेता हूं। जहां परमात्मा स्वयं ये वाक्य गीता में भी बोलते हैं
तो क्यों हम हर रोज हमारे नित्य कर्मों में, पूजा पाठों में हमारे परिवार की चिंता लेके बैठते हैं? अर्जुन ने कहा कि इन सब के सामने मैं कैसे लड़ूं? हमारे मरने के बाद हमारे वंशजों का क्या होगा? तब कृष्ण भगवान ने कहा कि युद्ध भूमि में खड़ा रह के क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, और जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में खड़ा रह के मेरे बाद क्या होगा ये सोचे, ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। इसलिए अर्जुन तू लड़, मैं जो कहूं वो तू कर, तू जो चिंता करता है तेरी चिंता मैं कर लूंगा। अब आप सोचिए कि भगवान ने तो अर्जुन को कहा है तू कर, तेरी चिंता मैं करूं। तो जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा है वैसे भगवान हमें भी यही कर रहे हैं कि आप संसार करें, संसार के हर एक कर्तव्य को निभाए, लेकिन प्रति क्षण चिंता करना छोड़ दे। जो संसार करता है, कर्तव्य को निभाता है, वो भी एक परमेश्वर की ही पूजा होती है। लेकिन संसार में रहते हुए सिर्फ कर्तव्य करे और साक्षी भाव से कर्तव्य करे कि हे भगवान, मैं जो कर रहा हूं वो तेरे चरण में अर्पण कर रहा हूं, बाकी सबको तू संभालना। तो भगवान संभालता है। इसलिए चिंता हमें हमारे इष्ट देवता से दूर ले जाती है। आज आप देखिए, किसी को चिंता है कि मेरे पे कर्जा ज़्यादा है, किसी को चिंता है कि मुझे किसी से लेना है, बाकी है वो लेना है, उसकी चिंता है। कोई ऐसा है जिसे बच्चों की पड़ी है, कोई ऐसा है जिसके पास बहुत कुछ है तो अब क्या करे, उसकी चिंता है। तो चिंता कहाँ से हमें नहीं छोड़ती। प्रति मिनट हम चिंताग्रस्त ही जीते हैं। और जब हम चिंता को लेते हुए जिए और हम सोचे कि जितनी हमने चिंता बनाए रखी है, ये सब जब हम चिंता करते हैं तो अपने आप को ही करता धरता मानते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारी शक्ति सिर्फ शरीर तक मर्यादित है? आप सबकी चिंता करेंगे, लेकिन एक सोचिए कि अगर हम बीमार पड़ गए खुद, तो हम हमारा भी कर सकते हैं क्या? हम सबकी चिंता करते हुए हम कर्ता भाव में आ जाते हैं कि मैं इसकी चिंता करूं, इसकी चिंता मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, मैं करने वाला, मैं चिंता नहीं करूंगा तो क्या होगा। लेकिन जब हम कर्ता भाव में आ जाते हैं, लेकिन अगर हम जब बीमार पड़े तो हम क्या हमारे लिए कर सकते हैं क्या? हमारी क्षमता तो उतनी भी नहीं कि हम बीमार पड़ जाए तो बाजू में पड़ा हुआ ग्लास लेके हम पानी पी सकें। हमारी शरीर की क्षमता तो उतनी भी नहीं कि हम कॉट पे से उठ के बाथरूम की ओर जा सकें। बीमारी में ज़्यादा अशक्त हो जाए तो हमारी क्षमता तो इतनी भी नहीं कि जो खाना हमारे सामने पड़ा है वो खाना हम खा सके। हमें संभालने के लिए भी कोई चाहिए। तो जब हम कर्ता भाव में आ जाता है और सबके लिए हम जब चिंता कर लेते हैं और मैं जो चिंता करूं वही सब हो सकता है, तो सोचिए कि बीमार पड़ने के बाद हम हमें भी नहीं देख पाते। तो हमें यहाँ ही समझना है कि हम क्यों चिंता करें। हम चिंतन करें, हम जो कर रहे हैं उसमें चिंतन करें। चिंतन करने का फायदा एक होगा कि चिंतन आपको ऊपर की ओर ले जाएगा, चिंतन आपको सकारात्मक बना देगा। चिंतन करने से संकल्प शक्तियां बढ़ेगी और चिंता करने से संकल्प शक्तियां गिरेगी, हमारी नकारात्मकता बढ़ेगी और हम में जो आत्मभाव है वो धीरे धीरे हमारा नष्ट हो जाएगा। और इसीलिए भगवान ने कहा है कि संसार करे, कर्तव्य करे, सब करे, लेकिन चिंता छोड़े।
करने लायक है चिंतन कि यह काम मैं कैसे अच्छी तरह से करूं, सभी को मैं कैसे खुश अच्छी तरह से रखूं, मेरी ओर से किसी को दुख कैसे न हो, कैसे मैं सबके साथ मीठा बोलूं, कोई रोगी आ जाए तो उसको मैं दवा कैसे दूं, कोई भूखा आ जाए तो उसको मैं खाना कैसे दूं, जिसके पास पैसा नहीं है उसे पैसे से मदद मैं कैसे करूं। अच्छे से अच्छा सोचने में चिंतन करें। लेकिन भूतकाल में जो हुआ है, अगर भविष्य काल में ऐसे होगा, ऐसे अगर सोचेंगे तो वर्तमान की रोटी जो मीठी लगनी है वो भी कड़वी लगेगी, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार हमने चिंता करनी शुरू की तो चिंता हमें कभी छोड़ती नहीं। और इसीलिए कहा है कि चिंता और चिता समप्रोक्ता है, दोनों बराबर है। चिंता चिता समप्रोक्ता बिंदु मात्रेण विशेषण। एक माथे के ऊपर एक बिंदु, चिंता और चिता की स्पेलिंग में माथे के ऊपर एक अनुस्वार है, बिंदु, बस उतना ही फर्क है इसमें। सजीव दहते चिंता, निर्जीव दहनते चिता, कि जो सजीव को जला दे वो चिता और जो निर्जीव को जला दे वो चिता। फर्क कितना है? चिता और चिंता में एक अनुस्वार का फर्क है। जो व्यक्ति चिंता करता है वो अपने सदेह को जलाता है, सजीव देह को जलाता है। चिंता इस देह को जलाती है। और चिता क्या होती है? जो निर्जीव देह को जला दे वो चिता होती है। दोनों का काम जलाने का है। एक मरने से पहले जला देगी, एक मरने के बाद जला देगी। फर्क क्या हुआ? फर्क कुछ नहीं, एक अनुस्वार, बिंदु मात्रेण विशेषण। तो करना क्या है? तो करना है चिंतन। चिंता को छोड़े, चिंतन करें। और जब हम चिंतन करते हैं तो प्रेम भाव बढ़ता है। जब हम चिंतन करते हैं तो किसी के आश्रय में हम चले जाते हैं। जब हम चिंतन करें तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम चिंतन करें तो हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। एक बार समर्थ स्वामी रामदास बैठे थे। समर्थ स्वामी रामदास ने अपने शिष्यों को कहा कि आज मुझे दूध पीने की इच्छा है। तो सब शिष्य खड़े हो गए कि बताइए गुरुदेव, अभी जाके हम गाय का, देसी गाय का दूध लेके आते हैं। महाराज ने कहा नहीं, गाय का दूध नहीं पीना है। तो किसी ने कहा बकरी का दूध लेके आते हैं। महाराज बोले आज तो बकरी का भी नहीं पीना है। किसी ने कहा ऊँट का दूध, ऊँटड़ी का दूध लेके आते हैं, उसका भी नहीं पीना है। तो महाराज किसका दूध पीना है? आप वनस्पति का दूध लेके आते हैं। आप कहे उस जंगल में जहाँ कहे वहाँ जाके आते हैं। महाराज ने कहा वो दूध भी नहीं पीना है। आज मेरे पेट को भूख लगी है, मुझे सीहन का दूध पीना है। जब ऐसे कहा तो जितने भी शिष्य से सब चुप बैठ गए, कोई खड़ा नहीं हुआ। स्वामी जी देखने लगे। उतने समय में शिवाजी महाराज आए। शिवाजी महाराज ने कहा गुरुदेव बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि बेटा मुझे दूध पीना है। शिवाजी खड़े हो गए, लाओ मैं लेके आता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। गुरुदेव ने कहा सोच ले, इन सब ने भी यही पूछा था, अब कोई उठ नहीं रहा। नहीं आप बताइए, जो कहे गाय का दूध लाऊं, जो जहां से कहे वहां मैं लाऊं। स्वामी महाराज ने कहा मुझे किसी पशु का दूध नहीं चाहिए, किसी गाय का दूध नहीं चाहिए, किसी वनस्पति का दूध नहीं चाहिए, मुझे सीहन का दूध चाहिए। बड़ी जोर से भूख लगी है, मुझे सीहन का दूध पीना है। शिवाजी महाराज खड़े हो गए। हाँ मैं जाता हूँ और मैं जंगल में जाके सीहन का दूध लेके आता हूँ। सब लोग देखने लगे। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा।
शिवाजी महाराज ने चिंता छोड़ दी। बाकी लोगों ने चिंता की कि सिंहन का दूध लेने के लिए जाएंगे, वो फाड़ खाएगी तो क्या करेंगे। चिंता छोड़ी, निकल पड़े अपनी भवानी लेके। शेरनी कहाँ खड़ी थी, वहाँ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज गए, सोने का पात्र हाथ में लिया और वहाँ जाके खड़े रहे। 2 मिनट दृश्य देखा कि बच्चे दूध पीते हैं, अगर मैंने दूध लेना चाहा तो वो आक्रमण कर देगी, क्या करूं। आंख बंद की, चिंतन किया गुरुदेव का कि गुरुदेव आपने आदेश दिया था कि सिंहन का दूध पीना है, प्रेरणा दीजिए, पशु को भी प्रेरणा दीजिए और मुझे हिम्मत दीजिए, मैं प्रयत्न करने जा रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज गए, सिंहन के सामने बैठे और सिंहन को 2 हाथ जोड़ के बोला कि मैं जानता हूं तू माँ है, ये तेरे बच्चे हैं, इन्हें तो दूध पिला रही है। कोई माँ अपने बच्चे का दूध नहीं देती, लेकिन मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरे पास आया हूं, मुझे तेरा ये दूध चाहिए, लेकिन ये मेरे लिए नहीं, मेरे गुरु का आदेश, मैं गुरु के आदेश के लिए मैं तेरा दूध लेने आया हूं, मेरे गुरु को दूध पीना है। मैं तुझे प्रार्थना करता हूं, तेरा आंचल खोल दे और मुझे दूध दे दे इसमें। ऐसी प्रार्थना की, मनुष्यवाणी में प्रार्थना की और चमत्कार हुआ। सिंहन खड़ी हुई, अपने बच्चों को दूर हटाया, अपना जो आंचल था फैलाया, 4 टांगों पे खड़ी रही, पैर जैसे पसारे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोने का पात्र रखा, अंदर ऊपर से दूध पड़ा, दूध लिया, प्रणाम किए और गुरुदेव के सामने लाके दूध रखा। जैसे दूध रखा, गुरुदेव ने देखा और गुरुदेव ने कहा कि मैं यही देखना चाहता था कि मेरे शिष्यों में से कौन शिष्य ऐसा है कि जिसके पात्रता में सिंहन का दूध आके ठहरता है। तू एक ऐसा शिष्य है सोने के जैसा कि तू जाके सिंहन का दूध लेके आया। मैं तेरी पात्रता देखना चाहता था कि मैं जो सौंपूं उसमें तुझे चिंता होती है या मेरे ज्ञान से तुझे चिंतन होता है। और मैंने देखा ये सब चिंता करने वाले थे, मौत के भय से भागे, बैठे रहे। तू एक छत्रपति था जो तूने चिंतन किया कि गुरु ने आदेश दिया है तो कुछ ना कुछ इसमें होगा, बता कैसे लाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी घटना का वर्णन किया। गुरुदेव ने माथे पे हाथ रखा कि पात्रता इसे कहते हैं कि जिसमें चिंतन हो। व्यक्तित्व उसे कहा जाता है जिसके पास चिंतन हो। शिष्य उसे कहा जाता है कि जो गुरु के वाक्य के ऊपर चिंतन करे। तो जो चिंतन कर सकता है वो ही जीवन में इष्ट देवता के समीप से समीप पहुंच सकता है। और इसीलिए हमें चिंता छोड़नी चाहिए। बाकी सजीव को जो जला दे वो चिंता होती है और निर्जीव को जो जला दे वो चिता होती है। चिंता अनेक प्रकार की होती है। किसी को वास्तविक चिंता होती है, किसी को स्वाभाविक चिंता होती है, किसी को शील गुण की चिंता होती है। आप देखिए कि दशरथ राजा थे तो दशरथ राजा को 2 प्रकार की चिंता हुई। एक चिंता थी स्वाभाविक, दूसरी चिंता हुई शील गुण चिंता। जब राजा राम को गादी सौंपी गई कि कल अभिषेक होगा और राम गादी पे बैठेंगे, लेकिन रात को कैकेयी ने कहा कि मेरे युद्ध का वचन है कि मैं जो 3 वचन मांगूंगी वो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो वचन क्या? तो राम को वनवास दे दीजिए, मेरे बेटे को गादी दे दीजिए। अब आप देखिए दशरथ राजा होते हुए भी दशरथ राजा चिंता में पड़े।
उसमें एक चिंता थी स्वाभाविक चिंता और दूसरी चिंता थी शील गुण चिंता। स्वाभाविक चिंता क्या हुई कि मेरे राम को मैं वनवास भेज दूंगा, वो कभी वनवास गया नहीं, ऐसे कंटक वन में वो कैसे जिएगा, मैं मेरे पुत्र को वनवास कैसे दे दूं, कंटक वन में वो कैसे जिएगा, वो कैसे चलेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, उसकी चिंता हुई। और दूसरी चिंता कि मैंने वचन नहीं निभाया तो दुनिया क्या बोलेगी, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारी वर्षों की परंपरा है कि एक बार रघुकुल पति बोल दे तो वो पूरा करना पड़ता है, और अगर मैंने नहीं पूरा किया तो कई पूरी दुनिया को बताएगी कि दशरथ राजा अपना वचन चूके। तो एक बाजू मेरे पुत्र की चिंता स्वाभाविक है और दूसरी बाजू मेरे वचन की चिंता, शील गुण चिंता। दोनों ओर से मैं चिंताग्रस्त हूं। एक चिंता मेरे देह को खा रही है और दूसरी जो चिंता है वो मेरे आत्मा को खा रही है। क्या करूं मैं? और अंत में हमने देखा कि वही हुआ कि राम को वनवास हुआ और राम वनवास चले गए। पश्चात दशरथ राजा जीते जी चिंता में ही अपने जीवन को उसने समाप्त कर दिया। तो ये चिंता हमारे जीवन को मरने से पहले मारती है और चिता मरने के बाद जला देती है। ये दोनों में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसीलिए कहा गया कि चिंतन करें। आज का जो समय चल रहा है वो चिंतन करने का समय है। बहुत बड़ी महामारी फैली है, प्रत्येक को दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ लक्षण आते हैं, अच्छे हो जाते हैं, वापस आते हैं। हर रोज़ हम न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ नया, कितने मरे कितने बचे, वो हम देखते हैं। हमारे आजू बाजू में ये सब माहौल खड़ा हो रहा है और हम सब चिंताग्रस्त हैं। और जहाँ हम सब चिंताग्रस्त है तो वही चिंता अगर हम लेके चलते रहेंगे तो कुछ हो उसके पहले ही चिंता ही हमारे देह को जला देगी। इसलिए ये समय है कि हम चिंतन करें। क्या चिंतन करें? तो एक ही चिंतन करें कि हम खुद को कैसे संभालें, हमारे परिवार के सदस्य को कैसे संभालें, एक दूसरे को हिम्मत कैसे दे, अगर कुछ होता है तो कैसे दवा करें, किसी को मदद की जरूरत कैसे दे, और हो सके तो घर में बैठ के ही घर का बनाया हुआ ही आचार विचार और व्यवहार करें। और ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन हमारा प्रबल हो, इसलिए ग्रंथों का श्रवण करें, ग्रंथों का पाठन करें, हमारे पास जितने मंत्र है उसका जाप करें और अपने अंदर की जो चेतना है उसे चिंतन की ओर पलटने का प्रयत्न करें, अपना माइंड डाइवर्ट करें। ये जो चित्त होता है, चित्त की वृत्तियां उठती है और इंद्रिय के द्वारा वो बाहर जाती है। और जब चित्त की वृत्तियां जब उठती है और इंद्रिय के द्वारा जब वो बाहर की दुनिया में जाती है तो कुछ ना कुछ आकर्षण और विकर्षण वो लेके आती है। और इसीलिए योग मार्ग में कहा है कि चित्त वृत्ति निरोध, कि अंदर से जो उठता है उसे बाहर डाइवर्ट न करे, अंदर से जो उठता है उसे अंदर ही डाइवर्ट करे। यानी मोबाइल के ऊपर आप जब देखो और ऐसी सब महामारी के बारे में डिटेल न्यूज़ हो, उसे देखना बंद कर दीजिए। आप मोबाइल खोलेंगे यही आएगा सब, फेसबुक खोलेंगे उसमें यही आए, ये देखना बंद कर दीजिए। अच्छा सर्च कीजिए, रामायण है, महाभारत है, या जो भी कुछ मोटिवेशनल है उसको सर्च कीजिए, उसको देखिए। आपको खेल अच्छा लगता है तो उसमें देखिए, संगीत अच्छा लगता है तो वो सुनिए। अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि अखबार में रोज चिंता का कारण होता है। अखबार
मैं पिछले 2 महीने से मैं अखबार देखता नहीं। मैं मेरे यूट्यूब के ऊपर ऐसी कोई सूचना पढ़ता भी नहीं। मुझे जो पसंद आता है वही मैं सर्च करता हूँ। और इतने सारे जो प्रवचन यहीं से हुए हैं, उस प्रवचन को घर में लगाइए, दत्त बावनी को लगाइए, नवनाथ बावनी को लगाइए, और अपने अंदर से जो वृत्तियाँ उठती है, चित्त वृत्ति निरोध, बाहर जाती हुई उसे अटकाइए। अंदर समीप हमारे अंदर जो आनंद धन बैठा है, ज्ञान धन बैठा है, जो हमारा इष्ट देवता हमारे भीतर में है, उसकी ओर हमारी चेतना को जोड़िए। ऊर्जा वहीं से प्राप्त होगी, प्रतिकार शक्ति वहीं से हमें प्राप्त हो जाएगी, और इतनी शक्ति प्राप्त होगी कि अगर कुछ हो भी तो डरेंगे नहीं, उससे हम लड़ेंगे। उसकी आंखों में आंखें डाल के हम लड़ेंगे, महामारी को परास्त करेंगे और हमारे जीवन को बचाएंगे। और मन में चाहना रखे कि हमें जल्दी ठीक होना है, और जैसे सब पूर्ववत चालू हो वैसे गुरु दरबार में हमें दौड़ के जाना है। हमें पहले जैसे सत्संग करने हैं, हमें पहले जैसे भजन करने हैं, हमारी सब प्रवृत्तियां हमें वापस करनी है। उठने का प्रयत्न करें, और जो बीमार पड़े हैं वो भी मक्कम रहे, टाइम टू टाइम दवा ले, टाइम टू टाइम खाए, और सबसे अच्छी दवा है नींद आए उतनी नींद निकाले। जितनी नींद मिलती है आंख बंद करके नींद निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा नींद निकाले। जितने समय नींद निकलेगी विचार बंद हो जाएंगे, और जितने समय विचार बंद हो जाएंगे अपने आप आपके अंदर की पॉजिटिव शक्ति है वो अपने आप डाइवर्ट हो जाएगी। इसलिए जितनी हो सके उतनी नींद निकाले, और अपने घर में जितने भी है उससे कम बोले। ज़्यादा बोलने से ऑक्सीजन खत्म होगा। कम से कम बोले, मौन व्रत धारण करें। मैं 9 दिन मौन कर सकता हूँ, तो आप दिन में 5 घंटा मौन करें, और जब 5 घंटा मौन करें गर्म पानी पिए और गुरु मंत्र की माला हाथ में रखें। अगर बीमार हो तो गुरु मंत्र की माला हाथ में रखें, एक बार माला करें, 10 मिनट आराम करें, वापस माला करें। समय निकालना है, चिंतन करें और समय निकालें, चिंता के साथ न निकालें। अगर इतना हो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपका ऑक्सीजन खलास कर सके। परमात्मा ने पूरी दुनिया में इतना प्राणवायु फ्री में दिया है, हम सब उसी से लेते हैं, तो हमें क्यों जरूरत पड़ती है बोतलों की। सुबह में जल्दी उठे और सूर्य की ओर ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन उधर से मिलेंगे आपको, और खुले में रहे। मगर मन से जो वृत्ति उठती है उसे बाहर न जाने दे, अपने इष्ट देवता की ओर डाइवर्ट करें। असली ऊर्जा जो मिलनी है आत्म ऊर्जा यहीं से मिलेगी। अगर आत्म ऊर्जा बढ़ गई, दवा 4 गुना काम करेगी। बस इतना करें, और घर में बाकी सब जो है एक दूसरे को प्रेम दे, हंसे, बोले और बात करें, चिंतन करते रहे। जल्द से जल्द आप ठीक भी हो जाएंगे, गुरु दरबार में भी आएंगे, सब प्रवृत्तियां होंगी। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम जिसके शरण में है, जिसका सानिध्य हमारे साथ है, और जिसके सानिध्य ने आज तक हमें लड़ना सिखाया है, हमें जीना सिखाया है, वो हमारे इष्ट देवता नवनाथ हमें जीवन में कभी भी डूबने नहीं देंगे। आप देखिए कि नवनाथ चरित्र में आपने देखा कि रेवणनाथ भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, रात को रुक जाते हैं, और उसी ब्राह्मण के घर उसका 5वां बेटा भी चला जाता है। सुबह उठते हैं, देखते हैं तो मेरा 5वां बेटा चला गया। रेवणनाथ कहते तू चिंता मत कर, उसका प्राण मैं लेके आऊँगा, बस इसे संभाल के रखना। रेवणनाथ जाते हैं, यमराज से लड़ते हैं, विष्णु से लड़ते हैं, शिव से लड़ते हैं, अपने बाकी के 4 बच्चों का प्राण लेके आते हैं, और वहाँ आके वो जो बॉडी थी उसको कूट के मीन जैसे उसके 5 पुतले बनाते हैं, और उसमें प्राण संजीवनी फूंकते हैं, और 5 बेटे जिंदा होते हैं। तो ऐसा सामर्थ्य नवनाथ की कृपा में था, और आज भी है।
गुरुदेव की कृपा में भी वही सामर्थ्य था और आज भी है। लेकिन जरूरी है हम चिंतन करें और मन से श्रद्धा रखें। तो जितनी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, जितना चिंतन बढ़ेगा, उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्भय हो जाएंगे। अनाथ वो होता है जो डरता है, अनाथ वो होता है जो दुखी होता है, अनाथ वो होता है जो चिंताग्रस्त होता है, और सनाथ वो होता है जो निर्भय होता है, जिसे अपने इष्ट देवता में विश्वास होता है। और हम सब सनाथ है, क्योंकि हमें हमारे गुरु वचनों के ऊपर विश्वास है। इसलिए आज के दिन मैं खास इतना कहना चाहूँगा कि चिंता को छोड़ दे, भय को छोड़ दे, दुख को छोड़ दे, अज्ञानता को छोड़ दे, मन की अस्थिरता को छोड़े और इष्ट देवता के चरणों में ध्यान लगाए। अगर मन स्थिर हो गया तो समझ लीजिए भय से मुक्त हो जाएंगे, आप निर्भय हो जाएंगे, आप निडर हो जाएंगे। और मेरा मानना है आप सनाथ हो और आप सनाथ ही रहेंगे। तो ऐसे करते हुए गुरु मंत्र का स्मरण करते रहे। तो आज के गुरुवार को हम सब मिलके गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सब आपके शरणों में है, नवनाथ के सानिध्य में है। आप दया के सागर हो, करुणा सागर हो, और आपने ही हमें दृष्टि दी है कि जहाँ जहाँ नज़र करे वहाँ देखे नाथ ही नाथ, आप ही हमें दिखते हैं। तो हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे श्वास में, हमारे रोम में हमारे सद्गुरु सानेनाथ और नवनाथ बसे हैं। उसका दर्शन हम आज भी बार बार कर रहे हैं। हमारे जीवन को स्थिर करे, आई हुई महामारी से हम सबको बचाए, पूरे विश्व को बचाए, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरी दुनिया का भला हो, ऐसी प्रार्थना आपके चरणों में 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए हम करते हैं। गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़बंग कानीपमच्छेन्द्रराज्य चौरंगी रेवाणक भर्तवरी सज्ञा भूम्याम्ब वर्ण नवनाथ सिद्ध। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। ये नित्य प्रार्थना की पुस्तिका का विमोचन हुआ है 23 अप्रैल के दिन। तो जैसे गुरुवार शुरू होंगे सभी भक्तों को यह पुस्तिका उपलब्ध होगी। यह पुस्तिका में सानेनाथ स्तोत्र, एक नया स्तोत्र दिया गया है जिसका आप हर रोज पाठ करें। बीच में विचार गंगा में या फेसबुक के ऊपर भी इसका फोटो डाला गया था सानेनाथ स्तोत्र का, तो उधर से आप ले लें और हर रोज सुबह, शाम और रात 3 टाइम
उसका पाठ करें। अगर पाठ करेंगे तो महामारी से मुक्ति जरूर मिलेगी, ऐसी मुझे स्वयं श्रद्धा है और इसमें यह कृपा भी दी गई है। तो ऐसे ही घर बैठ के कुछ न कुछ करते रहे और अपना ध्यान जो है, अपना चिंतन इष्ट देवता के चरणों की ओर लगाए रखें। आज का भंडारा जयाबेन ने अपने पतिदेव के स्मरण में किया है और उन्होंने कह दिया है कि 2 गुरुवार के भंडारे कोई करे न करे, लेकिन मेरी ओर से होंगे। जहाँ जहाँ रास्तों के ऊपर भी फूड पैकेट जाते हैं उसमें भी योगदान रहेगा। तो ऐसे जो भी कोई भक्त है और ऐसे जो भंडारा करवाते हैं उसके भंडारे हम चालू रखेंगे। जिसे ऑनलाइन भी गुरु दक्षिणा देनी हो वो दे सकता है, उसका सदुपयोग ऐसे ही कार्यों में होगा। तो आप सब घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपने आप को संभालें। अभी किसी को आश्रम में आने की ज़रूरत नहीं है। कई भक्तों के फ़ोन आते हैं कि कई दिन हो गए हम दर्शन को नहीं आ पाए, तो हम आना चाहते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कोई नहीं आए, घर पे ही बैठे। अभी SOP भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई है, सरकार भी हर जगह पे जांच रख रही है कि यहाँ कोई प्रोटोकॉल तो भंग नहीं होता। तो हम अगर ज़्यादा यहाँ आएंगे और प्रोटोकॉल भंग होगा तो आश्रम का नाम भी खराब होगा। तो उससे अच्छा है थोड़े समय के लिए और 10-15 दिन के लिए रुक जाए। जैसे सब शुरुआत होगी मैं प्रवचन में कहूँगा, बाद में आप आ सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन तब तक घर बैठे और घर बैठे प्रवचन सुने। तो आज के गुरुवार के लिए इतना ही। जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।